पहले तो हम डिस्कस करते हैं सेल्फ टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग चैप्टर नंबर 18 का सेल्फ टेस्ट। 18.1 क्वेश्चन में हमें कह रहा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स विच यूजेस known sample evidence statistics to draw conclusion regarding unknown population characteristics parameter is known as, ठीक है भाई, ये चीज कहलाती है एस्टिमेशन। ठीक है, एटीन पॉइंट टू में कह रहा है अ न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन टू द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दी जाए अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर को, उसको कहते हैं एंड एस्टिमेट। ठीक है, एटीन पॉइंट थ्री है हमारे पास द स्टैटिस्टिक इज रेफर्ड टू एज, द स्टैटिस्टिक्स इज रेफर्ड टू एज डैश ऑफ द अननोन पैरामीटर। स्टैटिस्टिक्स रेफर टू एज एस्टिमेटर ऑफ द अननोन पैरामीटर। ठीक है, 18.4 में आ जाते हैं if the expected value to the of the estimator is equal to parameter being estimated, the estimator is said to be unbiased। एक्सपेक्टेड वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू इक्वल आ जाए तो ऐसा क्या होता है, एस्टिमेटर को कहते हैं अनबायस्ड है, कोई एरर मौजूद ही नहीं है। 18.5 if an estimator achieves improved reliability and precision as the sample size becomes larger than the estimator is said to be consistent, इसको कहते हैं consistent। 18.6 of all possible unbiased estimator of some parameter, the one which is the smallest variance is said to be most efficient, इसको कहते हैं most efficient। ये definitions हैं, ठीक है, इसमें आपने इसकी theoretical चीज़ें पढ़नी है। A single numerical quantity used to estimate the population parameter is called point estimate। एटीन पॉइंट एट है if it is desirable to determine an interval within which one would expect to find the value of parameter such as interval is called, इसको कहते हैं इंटरवल एस्टिमेट। 18.9b the value obtained by subtracting the number of parameter to be estimated from the number of independent values in a sample is called degree of freedom। जैसे कि वन पॉपुलेशन पे हम कैसे निकालते हैं, वन पॉपुलेशन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलता है n-1, टू पॉपुलेशन पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलता है n1 + n2 - 2। ठीक है, the procedure of establishing a set of rules that lead to the acceptance or rejections of some kind of statements about population parameter is called testing of hypothesis।
any assumption or conjecture about one or more population is called statistical hypothesis. सब definitions हैं. The hypothesis against which we hope to gather evidence is called the hypothesis against which we hope to gather evidence, इसको भी statistical hypothesis ही कहते हैं. 18.13 The hypothesis for which we wish to gather supporting evidence. The hypothesis for which we wish to gather supporting evidence. Alternative hypothesis. (18.14) All hypothesis testing results are important, but the test is statistically significant only when the hypothesis is rejected. Hypothesis अगर reject हो जाए तो हमारा टेस्ट जो होता है वो significant होता है. Rejection of the null hypothesis when it is true is called rejection of null hypothesis. Null hypothesis reject हो जाए तो वो कौन सा एरर होता है? टाइप 1 एरर होता है वो. 16 The probability of committing a type 1 error is called level of significance. Acceptance of null hypothesis when it is false is called a type 2 error. 18.18 The very first statement which is tested for possible rejection is called null hypothesis. 18.19 में कह रहा है to prove that one teaching method is superior than another, the null hypothesis would be that there is no difference in between method. Is the stated is to prove that one teaching method is superior to another. सही है. The null hypothesis would be that there is no difference in the two methods. Correct. 18.20 में कह रहा है द प्रोसीजर बाय विच वी वेरीफाई एन एस्टेब्लिश्ड हाइपोथेसिस is known as test of significance. A function obtained from sample data which provides the mean of testing a statistical hypothesis is called test statistics. टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाके करते हैं ना हम सारी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं सैंपल डाटा के थ्रू. 18.22 में कहता है द एरिया स्पेसिफाइड फॉर द वैल्यूज विच आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम नल हाइपोथेसिस वैल्यू इज कॉल्ड क्रिटिकल रीजन. If the alternative hypothesis does not specify the departure from null hypothesis in a particular direction, then the test is called two-tailed test. जब आपको
स्पेसिफाई नहीं करता कि नल हाइपोथेसिस मोर पे है लेस पे है, तो फिर आप नॉट इक्वल टू पे, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू पे टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो टू टेल टेस्ट होता है। इफ़ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्पेसिफाइज द डिपार्चर फ्रॉम नल हाइपोथेसिस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन द टेस्ट इज कॉल्ड वन टेल टेस्ट, ठीक है। 18.25 में कह रहा है गिवन null hypothesis student A and student B in are equal in ability. The given hypothesis was rejected and the conclusion was drawn that student A is more capable than student B. In the coming year, it was found that the conclusion drawn was incorrect and there was no difference in their capabilities. The type of error was committed by the statistician was देखिए भाई, इस सवाल में कह रहा है कि आपको गिवन कंडीशन थी कि स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी एबिलिटी में है और गिवन हाइपोथेसिस जो था वो रिजेक्ट हो गया कि एबिलिटी में नहीं है, नॉट इक्वल टू पे टेस्टिंग हो गई थी और ये चीज़ फाइंड आउट आई वॉज ड्रॉन दैट कंक्लूजन वॉज ड्रॉन दैट द स्टूडेंट ए जो है वो मोर कैपेबल देन है स्टूडेंट बी के। In the coming year, it was found that the conclusion was drawn was incorrect and there was no difference in their capabilities. The type of error were committed by the statistician was, कौन सा type of error होगा? Type 1 error होगा, H0 reject हुआ हुआ है, given hypothesis जो है वो rejected है, तो rejected पे type 1 error होता है। एटीन पॉइंट 26 में कहता है इफ n इज लार्ज दैट इज n ग्रेटर देन 30 है, द वेरियंस ऑफ पॉपुलेशन इज अननोन देन द टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉर टेस्टिंग मीन ऑफ पॉपुलेशन मस्ट बी, n की वैल्यू ग्रेटर देन 30 है, पॉपुलेशन अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरियंस या स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, तो कौन सा टेस्ट लगेगा? Z टेस्ट। 18.27 में कहता है इफ द सैंपल साइज इज स्मॉल एंड लेस देन 30 है एंड द वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज नोन, नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन है, वी ऑलवेज यूज नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन पे Z टेस्ट, ठीक है। 18.28 में कह रहा है व्हाइल टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन T टेस्ट इज ओनली सेलेक्टेड इफ n इज लेस देन 30, वेरिएंस इज अननोन इफ A एंड B आर बोथ वैलिड, तो C वाला आंसर है कि n लेस देन 30 भी हो और वेरिएंस अननोन भी हो, सही है, सी वाला ऑप्शन है। 18.29 में कह रहा है व्हाइल टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन इफ वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज नोन देन ओनली Z टेस्ट इज वैलिड, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, तो सिर्फ उसके ऊपर क्या लग सकता है? सिर्फ और सिर्फ Z टेस्ट ही लग सकता है, टी टेस्ट नहीं लग सकता। आइदर कैन बी सेलेक्टेड, कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं मौजूद है, Z टेस्ट लगेगा, ठीक है भाई, क्लियर है। 18.30 में कह रहा है व्हाइल टेस्टिंग द हाइपोथेसिस इज अबाउट पॉपुलेशन मीन इफ वेरिएंट इज ऑफ पॉपुलेशन इज अननोन देन द सिलेक्शन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिपेंड अपॉन, जब अननोन होती है तो आप कैसे सेलेक्ट करते हैं? साइज ऑफ पॉपुलेशन को चेक करते हैं ना, या साइज ऑफ सैंपल को? साइज ऑफ सैंपल को, सैंपल का साइज देखते हैं, n कितना है, n अगर 30 से छोटा है तो टी टेस्ट लगाएंगे, n अगर 30 से बड़ा है तो Z टेस्ट लगाएंगे। 31 में कहता है व्हाइल टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन मीन if size of sample is large that is n is greater than 30 then the selection of test statistics depends upon, कह रहा है while testing the hypothesis about population mean if sample size is large, sample size large है, greater than 30 है, then the selection of test depends upon variance of population, variance of sample does not depend upon anything, none of these। तो भाई अगर टेस्टिंग कर रहे हैं हाइपोथेसिस की और सैंपल साइज जो है वो लार्ज है तो
आपका सैंपल साइज टास्क है तो टेस्ट स्टैटिस्टिक किसी चीज़ पे डिपेंड थोड़ी कर रही होती है, ठीक है, अननोन पे डिपेंड करती है। साइज ऑफ सैंपल पे किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही होती है, डज नॉट डिपेंड्स एनीथिंग। द सम ऑफ स्क्वायर्स of a sequence of independent the sum of squares of a sequence of independent normal variates with mean mu and variance sigma square is said to be, भाई अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन ये चाय स्क्वायर टेस्ट, चाय स्क्वायर वेरिएट कहलाता है, सही है, ठीक है भाई, क्लियर है ये आपको।